Starting. Okay, I'm sharing the screen. Okay. Are you able to see my screen? Yes, sir. Yes, sir. Are you able to see my screen? Yes, sir. Okay, fine. So, uh, good morning, namaste, jai hind, sat sri akal. I think Good morning, if sir. anything हो क्या होता है वालेकुम सलाम. So I think we are ready for the day, Yes, sir. and where I was actually lost. Uh, and I tried to explain you that what goes inside this Schrödinger equation is the knowledge of these constants basically, but no empirical parameters involved. और इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल अप्रोच. और that is the essence of all of this part. Now let us try to see what are the orders of energies which are involved in this calculation. By the way, let me ask you one thing. Arjun, still there is some mic on. Okay, sir. So, what are the orders of energies which are there? And for that matter, what we need to do is, we need to visit what we call Bohr model, because we have some rough estimate of various numbers from there. Do remember in a hydrogen atom, the average radius is typically half the angstrom, which you can see here written as 0.529. और अगर हम इस वैल्यू को इस्तेमाल करके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पेयर की कूलम पोटेंशियल एनर्जी निकालने की कोशिश करें तो ये वैल्यू आती है E स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन K नॉट. आई वुड वेरी स्ट्रांगली सजेस्ट आप सभी लोगों को कि ये वाली वैल्यू जो है ना, इसका खास ख्याल रखें. इसको हम हार्टली एनर्जी का नाम भी देते हैं, जो हमने टिपिकली हाइड्रोजन एटम के कंटेक्स्ट में इसकी बात करनी शुरू. सेकेंडली, लेट अस ट्राई टू गो टू काइनेटिक एनर्जी पार्ट. ये ना सिंपल मॉडल हमने क्या किया, बोहर मॉडल को इस्तेमाल कर रहे हैं. यू नो व्हाट डू वी डू इन बोहर मॉडल? वी आस्क दिस क्वेश्चन कि इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घुमाने वाली जो फोर्स है वो कौन सी है, और वो रेडियली एक्ट कर रही है. वो कूलम फोर्स है. और अगर हम ये मान के चलें कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज E एंड चार्ज ऑन प्रोटॉन इज माइनस E, and try to write down what will be the force, that turns out to be this number E square upon 4 pi epsilon naught into A naught square. And I said that it provides me the centripetal force, so that is nothing but mv square upon r. So I equate these two and I am able to get an estimate of the kinetic energy. Now if you look at this estimate here, this is E square upon 4 pi epsilon naught into 1 upon A naught, but half of that, so actually there is a small what you can call as blooper there, that
डिफाइन करा था, और जब मैं अब ये आपको दिखा रहा हूं तो ये आपको थोड़ा एक हाफ का फैक्टर यहाँ पे मिसिंग हो रहा है। सो हमारे पास एक चीज पता लगी हमें कि जो एनर्जी इन्वॉल्व है ये सारे सिस्टम में, उनका ऑर्डर जो मैग्नीट्यूड जो है वो हार्टली एनर्जी के बराबर था। कूलम पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करें तो ये ई हार्टली के बराबर है, और अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें दैट इज हाफ ई हार्टली, बट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज टिपिकली। तो ये चीज बहुत क्रूशियल है जिसको हम ध्यान में रखेंगे कुछ भी करने के लिए। तो व्हाट वी आर एबल टू सी इज दैट द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आर ऑफ द ऑर्डर ऑफ हार्टली एनर्जी। मैंने ऑर्डर बोला है, आपने इस बात का ख्याल रखना है। आई होप यू आर वेल कन्वर्सेंट विद द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड थिंग्स। When I am writing here E Hartree is equal to 27.214 electron volt, I know how to convert this into joules also. So let me just go on the whiteboard and try to do something for you. Let me have a new board here. So what is there is this, that this Hartree energy is of the order of how many electron volts we saw? 27.214. 27.214। और जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आई थी that was half of this, जो कि टिपिकली 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। दिस इज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस इज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये 27.214 है। अगर मैं इसको लिखूं 2.7214, then it will find that this is of order of the 10 is per 1 electron volt, and this is of the order of 1.36 into 10 is per 1 electron volt. Now, do remember, when we are talking of orders of magnitude, I want to see that in the powers of 10 what it is. So if it is 2.7214 written here, and if it is written 1.36 here, actually the power is 1 plus something. That something is how much? अब देखिए, अगर ये 10⁻⁵ होता तो ये जो वैल्यू मेरे पास 1 की पड़ी थी उसको मैं 2 बना लेता। बट आई फाइंड दैट दिस 2.7214 is such that it is less than 10⁻⁵. Okay, and this of that 10⁻⁵. So I can just forget about this, and I can forget about this, and I can say that energy is of the order of 10⁻⁴ electron volts. You must remember one thing more, यहाँ पे आपको याद रखने की जरूरत है कि हमारे जब भी हम मटेरियल्स सॉलिड स्टेट फिजिक्स वगैरह करते हैं, जिसको हम लो एनर्जी फिजिक्स बोलते हैं, इट इज नॉट हाई एनर्जी फिजिक्स। हाई एनर्जी फिजिक्स जो है उसके बारे में भी आप बहुत सुनते हो, पढ़ते हो, उसके कोर्सेज हैं हमारे पास। लो एनर्जी फिजिक्स में एनर्जीज आर ऑफ द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, whereas हाई एनर्जी फिजिक्स में एनर्जीज आर ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, giga electron volts, and so on. So we find that we are dealing with low energy systems here. तो हमने ये करने के बाद क्या चीज देखी कि ये जो हमारे पास इक्वेशन थी पिछली, उसमें सब जगह हमने ना E हार्ट्री से डिवाइड कर दिया। देखिए ये सारी टर्म एनर्जी को ही रिप्रेजेंट करती है। E हार्ट्री से डिवाइड करने पे क्या हुआ? Can you imagine that whole of this equation has become dimensionless?
और जब हम कैलकुलेशंस करते हैं, ये हमेशा एडवाइजेबल होता है कि जिन भी इक्वेशंस के साथ हम डील करें वो डायमेंशनलेस हो तो बहुत इजी रहता है। जो भी एनर्जी की वैल्यू आएगी हमारे पास, उसको डायमेंशनल एनर्जी में बदलने के लिए क्या करना है, इस वैल्यू को अगर मैं ई हार्टली से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में वो वैल्यू आ जाएगी। तो हमने क्या किया इस प्रोसेस में, we have made a decision, we have decided something, and what is that decision? That decision is the following: decided to work in units of Hartree energy. रादर ये जो अभी मैंने एक्सरसाइज आपको बताया कि टी हार्टली से डिवाइड कर दो, उस एक्सरसाइज का मीनिंग क्या था? उस एक्सरसाइज का मीनिंग था बड़ा सिंपल कि ये डायमेंशनलेस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। अब देखिए क्या होने वाला है, हमारे जितने डिस्टेंसेस हैं वो ना बोहर यूनिट्स में आएंगे। ओके, मासी जितने हैं वो इलेक्ट्रॉन मास के यूनिट्स में रहेंगे। और अगर हमारे पास ऐसा स्केल है जिसमें हम यूनिट ऑफ एनर्जी 1 हार्टली इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारा जो यूनिट ऑफ डिस्टेंस है वो 1 बोहर, जिसको हम 1 एटॉमिक यूनिट ऑफ मास बोलते हैं, तो सॉरी 1 एटॉमिक यूनिट ऑफ डिस्टेंस बोलते हैं, वो आ जाएगा। ऐसे ही ऐसा करने से क्या हुआ, सडनली यू फाइंड दैट यू हैव सर्टेन थिंग्स व्हिच यू हैव अचीव्ड। जैसे ए नॉट मेरा 1 बन गया, ये जो mi/me है ये भी इन द यूनिट्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया। बेसिकली मैं यहाँ पे ये देखने की कोशिश कर रहा हूँ, डायमेंशनल क्वांटिटी है कि हाउ मेनी टाइम्स मास ऑफ द न्यूक्लियर इज एज कंपेयर टू the mass of the electron, and we know these numbers, these are really very well known numbers to us, but सारी सिमुलेशन में हमें इस बात का पूरा ख्याल रखना पड़ता है कि हम का किस स्टेज पर आकर के जो वैल्यू हमारे पर आई है उनको उन नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे जिनके साथ हम यूनिट्स लिख सकते हैं। एक बात है जो आमतौर पे बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं होती है क्लास में, बट हमने ये जो चॉइस दी, इस चॉइस को लेने को हम बोलते हैं वी विल वर्क इन एटॉमिक यूनिट्स। आपका जो कोड है अगर आप उसके ऊपर नजर डालोगे तो आपको वहां पता लगेगा कि जो हमारे पास आउटपुट्स आ रहे हैं वो किस यूनिट में आ रहे हैं, बट वो सारे के सारे आउटपुट्स लास्ट स्टेप में आते हैं जब हम किसी मल्टीप्लाइंग फैक्टर से स्केल करके रियल वैल्यूज जो है फिजिकल पैरामीटर्स की निकालना। अगर इस पे आपको कोई शक हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। देखने में ये हमको ऐसा लगता है कि बड़ा सिंपल है, पर इट मेक्स लॉट ऑफ आवर लाइफ वेरी सिंपल। अब सोचने की कोशिश करो कि हमने क्या अचीव करा। अदरवाइज पता क्या होना था, हमने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन लेना था। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसका मतलब है इतने छोटे नंबर को लेकर के हमने कैलकुलेशन करनी, और इतना छोटा नंबर लेने का मतलब क्या है कि कहीं भी कंप्यूटर अगर कंप्यूटेशन करते करते इसको जीरो समझ बैठा, then what you will find on the screen is you will find some kind of a garbage coming out and not the actual results. तो अगर आपको मुझसे सवाल पूछना है पूछ सकते हो आप बड़े आराम से इसके बारे में। ये बहुत ही ज्यादा क्रूशियल चीज थी जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस की। चलो आगे। I am not able to see any question, but ये मैं मान के चल रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा है। आपके पास आ जाता
प्लीज आई एम विद यू। सर एक थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप इस पे इलाबोरेट करें। जैसे अभी आपने बताया कि इक्वेशन जब डायमेंशन लेस उसको करके सॉल्व करते हैं तो इट्स मच बेटर, सो उसको थोड़ा सा और देखिए एक बार फिर अगर मैं ये इक्वेशन आपको दिखाऊं तो आपको इमीडिएटली लगेगा कि इस इक्वेशन में जैसे ही मैंने हार्ट ट्री से डिवाइड करा, यू मस्ट बी अप्रिशिएटिंग दिस थिंग, ये जो हमने हैमिल्टोनियन मल्टीप्लाइड बाय साई लिखा हुआ है, दिस इज इक्वल टू एनर्जी मल्टीप्लाइड बाय साई, एंड इफ आई डिवाइड ईच ऑफ द टर्म्स बाय some energy which is a dimensional quantity, what I am trying to do actually, I am trying to convert it into a dimensionless thing. Very clear. yes. तो dimensionless thing होने के बाद जब मैं इसके ऊपर नजर डालने की कोशिश करता हूँ तो मेरे पास यहाँ एक फैक्टर ए नॉट का बैठा हुआ isn't it? Yes. और मेरे पास ये रेशियो आई, मासेस की रेशियो आ गई, जी सर। मेरे जो चार्ज वगैरह थे वो तो एब्जॉर्ब हो गए हार्ट ट्री में, की हार्ट ट्री में। If you recall what I was doing before this, let me just go to the full screen. ये देखिए जब आपने हार्ट ट्री डिफाइन करा था इधर, तो ये ई स्क्वायर साथ लेकर के हमने सब कुछ कैलकुलेट कर लिया था ना, राइट सर। तो इसका मतलब है हमारे पास ये ई स्क्वायर विच इज 1.6 into 10 is power minus 38 ये नहीं अपीयर करेगा। yes. 1/4 pi epsilon नॉट की वैल्यू जो नंबर हमें मालूम है, कूलम्ब लॉ जब हमने पढ़ा था, वो अब फिगर आउट नहीं करेगा। और हमने जितनी लेंथ्स थी वो जब ए नॉट के यूनिट्स में मेजर करने लगे तो व्हाट इज ए नॉट फॉर मी, ए नॉट इज लाइक यूनिटी फॉर मी। ओके Yes sir. अगर मैं अब यहाँ पे फिर आऊँ तो मैं क्या करूँगा, जब मैं अपने कंप्यूटर पे कुछ करने लगूंगा तो मुझे ये सब चीजें बहुत क्लियर है दैट आई एम डीलिंग विद डायमेंशनलेस नंबर्स, नंबर 1. नंबर 2, I have already taken care of those situations in which when the codes are run there can be what you call overflows or underflows in a calculation. अगर ओवरफ्लो होता है उसका मतलब है कहीं जीरो से डिवाइड हुआ, वैल्यू इंफिनिटी बन गई। अंडरफ्लो ये होता है कि हमने कुछ ऐसे किया कि वो नंबर जो वर्ड रेंज है कंप्यूटर की उससे ज्यादा कहीं छोटा हो गया, तो हम उसको होल्ड नहीं कर सकते थे अपने रजिस्टर में या मेमोरी। Okay, sir, I think it's good. I hope you have got it. It's a very important point. Just sir is emphasizing that these small numbers when we have to deal with in computations, we know that computation may consider it to be zero, or if the number is extremely high, computer can also not deal with it. It's infinity for that. So such situation we can avoid all these situations in computations when we define these units, when we make this equation dimensionless. So it's very essential for the computer. You have stated it perfectly. Okay, thank you. ये ना कंप्यूटेशन करते वक्त ये छोटी सी एक्चुअल प्रैक्टिकल थिंग है जिसको हमें ध्यान में रखना है। Right, sir. जैसे होता है ना कि किचन में अगर कोई जाए, उनको पता है कि हमने कुछ बनाना है तो तेल कब गर्म है और कब चीज डालनी है उसमें। बहुत ज्यादा गर्म हो गया तो जल जाएगा, नहीं गर्म है ज्यादा तो बात बनेगी नहीं। So we are actually trying to find a balance, keeping in mind what are the limitations of computer in it. Yes. ये जो लिमिटेशन है ना, इसका बहुत ख्याल रखना पड़ता है। Okay, sir. Thank you. So please move ahead. Okay, fine. Very good. So now try to see. Look at my equation. Finally, my equation is looking very, very elegant. कोई यहाँ पे मुझे x बार नहीं नजर आ रहा है, कोई मुझे e नहीं नजर आ रहा है। Everything is very simple. हमें external parameters की क्या जरूरत है यहाँ पे? Atomic number of the atoms which are involved and the atomic masses, MIs. That's it. This is, when you look at it, a
बार हमें लगता है कि पता नहीं हमने इसमें क्या गायब कर दी चीजें, क्या हमने छुपा दिया, छुपाया कुछ नहीं है, हमने इसको और डायमेंशन में छुपा करके एलिगेंट बना दिया, ताकि इनको जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे कंप्यूटर में तो कोई दिक्कत ना। So up to this point, when I started this lecture yesterday, we identified interactions, we have obtained many-body Schrödinger equation, and discussed why it is comfortable to work in atomic units. तो ये कल का लेक्चर था जो मैंने अभी कंप्लीट करा है. Now I will come to the next part of the lecture. So let us see this part जिसमें हम कुछ इंटरेस्टिंग चीजें अब और डिस्कस करेंगे, which are again very very crucial, जिनको हम कई बार बिना समझे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं. Particularly in this part, my effort is I have a many-body Schrödinger equation, but how do I solve it? And this is where the role of Walter Cohen came, and he brought out a very interesting idea. But please do remember, वो आइडिया वैसे ना उसका ओरिजिनल आइडिया नहीं था. मैं शुरू में ये बोलने लग गया. उससे पहले यही आइडिया एक मॉडल हम ना क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, जिसको हम बोलते हैं थॉमस फर्मी मॉडल. ये फर्मी और थॉमस इन दोनों ने मिलकर के एक क्वेश्चन अपने आप से पूछा था कि भाई जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एटम में बढ़ते हैं, कंप्लेक्सिटी बढ़ती चली जाती है. तो इंस्टेड ऑफ डीलिंग विद इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं हम कर सकते हम बात करना शुरू करें डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में अराउंड द न्यूक्लियस. इट वाज अ वेरी वैलिड क्वेश्चन. Particularly, they were interested in knowing the spectrum of heavy atoms, and heavy atoms mean the number of electrons involved in those heavy atoms is very large. ये क्लियर है अब आपको जो मैंने स्टेटमेंट बोली कि अब मैं किस तरह, मेरी मोटिवेशन कहाँ है, फिर मैं ही बोलूँ. तो ऑलराइट, what kind of materials we are interested in looking at through this Schrödinger equation? हम सॉलिड्स को पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, मॉलिक्यूल्स को समझना चाहते हैं, लिक्विड्स को समझना चाहते हैं, गैसेस को समझना चाहते हैं. हम there is so much variety of materials in nature, और हम ये मानते हैं फिजिक्स वाले और केमिस्ट्री वाले कि भी अल्टीमेटली उनके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स का तो साथ लेना ही पड़ेगा, उसको साथ लेकर के हमें चलना पड़ेगा. तो इस बात को ध्यान करते हुए हमने क्या किया, हमने देखने की कोशिश की कि भाई हम ना अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ी रेंजेस को नैरो डाउन करें इन टर्म्स ऑफ पॉसिबली व्हाट कैन बी अचीव, क्या पॉसिबली हम कर सकते हैं, उस कंटेक्स्ट में हमें बात करने की कोशिश. अब ये है कुछ पॉसिबल सिनेरियोस. वो क्या है कि जब भी हम सॉलिड की बात करते हैं या मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, तो देखने में ये आता है कि जो न्यूक्लियाई हैं सॉलिड में, वो अपनी अपनी जगह पे ना ऑलमोस्ट फिक्स पोजीशन पे बैठे रहते हैं, और वो अपनी जगह से ज्यादा मूव नहीं करते सॉलिड. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन है जो हमको ध्यान में रखनी है, एंड दिस विल लीड टू एन अप्रोक्सीमेशन व्हिच विल मेक आवर लाइफ फर्दर इजी. एज कंपेयर टू सॉलिड, अगर मुझे लिक्विड्स, गैसेस और प्लाज्मा न्यूक्लियाई वाले सिस्टम की तरफ ध्यान देना होगा, तो हम अपने जो न्यूक्लियाई हैं उनको वैसा नहीं मान सकते जैसे सॉलिड्स के केस में होता है. तो फर्स्ट केस में न्यूक्लियाई आर इमोबाइल, सेकेंड केस में न्यूक्लियाई आर मूविंग. अब जैसे ही मैंने इसी सॉलिड का एक्सरे क्रिस्टलोग्राफ किया, तो मैंने क्या देखा
देखा था। और इन न्यूक्लियाई की जो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है वो हमें पता होती है कि कहाँ है, और वो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन पता होने से क्या होता है, वी हैव ए गुड नॉलेज ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टल इटसेल्फ। जैसे मैंने कहा पोलोनियम का स्ट्रक्चर जो था वो क्या था, सिंपल की मैं अगर पोलोनियम लूं और पोलोनियम क्रिस्टल की मैं एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी करूं तो मेरे को पता लगेगा कि हाँ पक्का ऐसे क्यूब्स बने हुए हैं और न्यूक्लियाई जो है वो वर्टिसेस पे बैठे, और एक एक वर्टेक्स जो है वो 8-8 डब्बे जो है वो शेयर करते हैं हमारे लैटिस के। I hope you remember the definition of a crystal. Crystal was equal to lattice plus basis. Lattice मैं कैसे define करता हूँ? I try to define my lattice by means of this kind of a simple picture which is there in our head. वो ये है, मैं एक simple cube बना लेता हूँ। चलिए कि यहाँ पे न्यूक्लियस बैठा है, यहाँ पे न्यूक्लियस बैठा है, यहाँ पे बैठा है, यहाँ पे बैठा है, यहाँ पे बैठा है, यहाँ पे बैठा है, इधर बैठा है। ये मेरा ना जब मैं ये कैलकुलेशन करूंगा, नॉलेज ऑफ दिस स्ट्रक्चर गोज इनटू द सेटिंग अप ऑफ द सिमुलेशन। आप देख रहे होंगे 2-3 दिन में जब आपको ये एक्सरसाइज करवाई गई तो ना आपसे कहा गया कि बताओ आपके एटम कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं। तो सिंपल क्यूबिक था, बेस सेंटर्ड क्यूबिक था, फेस सेंटर्ड क्यूबिक था, हेक्सागोनल था, एंड ए वैरायटी ऑफ सच स्ट्रक्चर्स वी कैन हैव, ए वेरी लार्ज वैरायटी ऑफ दीस स्ट्रक्चर्स। और वो जैसे हमें ये पता लग गया तो हमें वो स्कैफोल्डिंग पता लग गई, न्यूक्लियाई बस वहीं पे बैठे होंगे, उससे आगे इधर उधर उन्होंने जाना भी नहीं। तो हमने क्या किया है, वी हैव इन फैक्ट नैरोड डाउन द पॉसिबिलिटीज व्हिच वर देयर। और उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि हम न्यूक्लियाई को हैवी ट्रीट करेंगे। हैवी ट्रीट करने का मतलब क्या है कि उनकी काइनेटिक एनर्जी को जीरो मानेंगे। अब ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, ये आपके सामने है पड़ा हुआ, -h⁻² मल्टीप्लाइड बाई डेल स्क्वायर। अब ये जीरो की तरफ कब जाएगा? अगर मैं mi जो है मतलब मास ऑफ द न्यूक्लियाई उसको इंफिनिटी मान लूंगा। This was one of the approximations which was made by Born and Oppenheimer together. वही ओपेनहाइमर जिसके ऊपर वही मूवी बन के आई है ना, आपने पता नहीं कितनों ने देखी है वो मूवी। ही वाज द सेम पर्सन। और आमतौर पे लोग बहुत कम जानते हैं कि ओपेनहाइमर कौन था, उसका क्या रोल रहा था एटम बॉम्ब बनाने में, और वो उसकी स्पेशलाइजेशन का एरिया क्या था। बट ही वाज अ वेरी मेटिकुलस काइंड ऑफ पर्सन, वेरी थॉटफुल, और उसको एटम बॉम्ब बनाने के बाद भी बेचारे को बहुत मुसीबतें झेलनी पड़ी। अगर आप उसका पता लगाना चाहते हो तो मूवी जरूर देखिए। नाउ देयर इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट व्हिच इज इंटरेस्टिंग। जब हमने ये फिक्स कर दी पोजीशन, तो ये जो हमारे पास वेरी एक्सप्रेशन एनर्जी में नजर आ रहा है, -12 सिग्मा i नॉट इक्वल टू जे Zi Zj डिवाइडेड बाय Ri माइनस Rj। इसमें Zi की वैल्यू कांस्टेंट है, Zj की वैल्यू कांस्टेंट है, पोजीशन Ri की कांस्टेंट है, और i न्यूक्लियाई की पोजीशन j न्यूक्लियाई की कांस्टेंट है। Ri माइनस Rj जो है विच इज जस्ट ए कांस्टेंट। तो हमने क्या किया, हम जब कंप्यूटर पे जाएंगे तो इस वैल्यू को नहीं कैलकुलेट करेंगे, रादर व्हाट वी विल डू इज वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दिस वैल्यू व्हिच इज E total minus the value which is actually a constant. This E total minus this is a constant. I hope you are appreciating that this is a constant. Positions are fixed. Ri vector is fixed. For the second nuclei, position is fixed. So this difference also gets fixed.
Zi और Zj जो है वो तो एटॉमिक नंबर है, वो भी फिक्स है। तो दिस इज बेसिकली ए कांस्टेंट। तो क्या हुआ कि जो हमारे न्यूक्लियाई थे उनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक किस्म से एक्सटर्नल पैरामीटर्स की तरह हम इस्तेमाल करें। और जो हमारे पास अभी इक्वेशन बची, इसको जरा ध्यान से देखिए। ये इक्वेशन क्या है? दिस इक्वेशन में दिस कैपिटल आर आई इज ऑल्सो ए कांस्टेंट। जहां तक ये स्मॉल आर आई का सवाल है, ये है इलेक्ट्रॉन्स के कोऑर्डिनेट्स, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इधर से उधर, उधर से इधर घूमी जा रहे हैं। इसका मतलब है जो हमारा सॉल्यूशन आएगा इस श्रोडिंगर इक्वेशन का, वो सॉल्यूशन सिर्फ इलेक्ट्रॉन के कोऑर्डिनेट्स के ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब ये वेव फंक्शन सिर्फ इलेक्ट्रॉन के कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड करेगा। एक्चुअली सॉल्यूशन ऑफ द श्रोडिंगर इक्वेशन इज व्हाट? द नॉलेज ऑफ द वेव फंक्शन एंड द कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी टू दैट पर्टिकुलर सिस्टम। तो हमने क्या किया, जो अभी पीछे हम अपना वेव फंक्शन लिख रहे थे इलेक्ट्रॉन के कोऑर्डिनेट से बना हुआ और फिर न्यूक्लियाई के कोऑर्डिनेट से मिलकर बना हुआ, उसमें न्यूक्लियाई को तो हमने बिल्कुल छोड़ दिया। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ द बॉर्न ऑपेनहाइमर एप्रोक्सीमेशन। हमारी लाइफ और भी सिंपल है। ओके, सो दिस इन फैक्ट इज डूइंग व्हाट? हमारे पास इसमें अब ये जो चीज बैठी हुई है, ये आप अगर ध्यान से देख रहे हैं, मेरा कर्सर नजर आ रहा होगा आपको, ये हमारे पास है बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट। ये पार्ट भी हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। ये तो सिंपली हमें बता दो भाई इलेक्ट्रॉन कहां कहां जा रहे हैं, मैं इसको कैलकुलेट करके आपको बता दूंगा विदाउट एनी डिफिकल्टी। ये जो मेरे पास पार्ट है, जिसको हम पीछे अगर मैं जाऊं, जिसको मैंने ये वाला पार्ट में जब बोल रहा हूं, राइट, इसको मैं स्पेशल नाम दे करके अलग से पहचान दे, वो है वी विल कॉल इट एज वी एंड आर। क्योंकि देखो आर और आई तो फिक्स था। एंड व्हाट हैज हैपेंड एज ए रिजल्ट ऑफ दिस, मेरी जो फाइनल इक्वेशन आपको नजर आ रही है ना, कैसे लग रहा है? मैंने तो न्यूक्लियाई का तो इसमें कहीं नामो निशान नहीं रहने खत्म कर दिया हो। नाउ एवरीथिंग व्हिच इज appearing in front of my eyes is independent of the nuclear coordinates. Nuclear coordinates have completely vanished. ये जो मेरे पास इक्वेशन आई अब रिड्यूस होकर के, दिस इज द फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर थ्योरी। ये है परिवार में कैसे ना एक मॉडल बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, धीरे 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 अप्रोक्सीमेशन लगा करके। यही आर्ट ऑफ अप्रोक्सीमेशन होता है कि कौन सी चीज है जिसकी हमें जरूरत है उसको रखो, जिस चीज की कोई जरूरत नहीं है उसको छोड़ो। आर यू एप्रिशिएटिंग दिस पॉइंट? एनी रिस्पॉन्सेज? I am still again coming back to you. I am with you. If you want to ask me, you can ask me. मैं शेयरिंग भी बंद कर सकता हूँ ताकि मुझे आप नजर आ जाओ। Yes, you are visible to. Okay, any questions from the participants? देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट माइलस्टोन है जिससे हम पहुंचे। ये माइलस्टोन मगर अभी भी इक्वेशन सॉल्व करनी इतनी आसान नहीं है। तो सर मैं जस्ट ये पूछना चाहूंगा, जैसे आपने न्यूक्लियस का इसमें इक्वेशन आप ना कंप्यूटर के आगे बैठ जाओ प्लीज, वहां पे बोलोगे तो मुझे क्लियर सुना नहीं दे, अदरवाइज देयर इज एन एको। ओके, मैं सर ये पूछना चाहूँगा कि जैसे न्यूक्लियस का आपने यहाँ पे इक्वेशन में कोऑर्डिनेट ही ख़त्म कर दिए, लेकिन जो हमारा लेटिस कांस्टेंट है और जो न्यूक्लियर की पोजीशन है उसको हमें कहीं पहले शायद फिक्स करना पड़ेगा कि दिस इज द पोजीशन ऑफ द न्यूक्लियस। बिल्कुल करते हैं ना, वो हम फिक्स करते हैं। एक्चुअली व्हेन यू ट्राई टू गो ऑन द मेन इनपुट फाइल, इन दैट इनपुट फाइल you are giving positions of atoms, you are giving the structure, and you are also giving lattice constant
हम जी सर। और कोई पेपर उठा के पढ़ेंगे इसका, और उन्होंने अगर कैलकुलेशंस करी होंगी तो वो आपको बता देते हैं कि भाई हमारा लेटेस्ट कांस्टेंट कितना है और हमारे जो स्ट्रक्चर बाद में बन के आया है वो कितना। इसका एक नंबर जैसे एक्सरसाइज सजेस्ट करूंगा सो दैट यू स्टार्ट एप्रिशिएटिंग दिस पॉइंट। वो एक्सरसाइज बड़ी सिंपल है कि मुझे किसी ने कहा कि आप क्लोनियम का ढिंढोरा पीटा हुआ है कि वो तो सिंपल क्यूबिक होता है, हमने एक्सरे में देखा है। मैं तो कंप्यूटर में देखना चाहूंगा कि वाकई में वो सिंपल क्यूबिक है नहीं। तो मैंने क्या करके देख लो यार, इसमें क्या हम ऐसा करते हैं, हम एक सिमुलेशन सेटअप करते हैं जिसमें हम स्ट्रक्चर 3 ले लें, सिंपल क्यूबिक से, बीसीसी से, एफसीसी। तीनों से मैं टोटल एनर्जी कैलकुलेट करूंगा और मैं देखता हूं, एक बड़ी फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग है हम सभी को, सबसे स्टेबल सिस्टम वो होगा जिसकी टोटल एनर्जी लोएस्ट होगी, isn't it? Yes, So you plot the total energy curves, you will be able to see that in the case of polonium, it is the simple cubic structure which has got the lowest energy. जी सर, वो एक्सरसाइज हम कर चुके हैं इन हैंड। अरुण जी ने वो एक्सरसाइज कराई है कि लो एनर्जी का मिनिमम आता है, वो हमने देख चुके हैं वो। नहीं, but I am not just doing one exercise. I am doing for 3 different structures. ओके। मेरी एक्सरसाइज में थोड़ा सा फर्क है। आपने एक करके देख लिया, आपने वो टोटल एनर्जी का कर्व ड्रॉ करके देख लिया, आपने देखा मिनिमम कहाँ आता है, उससे आपने बता दिया कि हमारा लेटेस्ट कांस्टेंट ये। इवन इन द केस ऑफ दैट हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, आपने जो बॉन्ड लेंथ फाइंड करनी थी उसमें भी आपने यही ट्रिक इस्तेमाल किया। Yes. ये तो और सिंपल है, बट नाउ आई एम सेइंग कि मोर देन वन स्ट्रक्चर मैं मान के चलता हूं। और मैं बोलता हूं नहीं, मैं नहीं मानता कि सिंपल क्यूबिक है जी लोएस्ट। ओके। मैंने 3 सिमुलेशंस करी, उनके अलग अलग से टोटल एनर्जी कर्व बनाए और विजुअलाइज किए कि किसकी लोएस्ट एनर्जी है। माय एक्सरसाइज इज डिफरेंट फ्रॉम दैट। Okay, I understand. So now you were saying that I would know that which is the equilibrium structure. I will get to know that where energy is minimum, that is the equilibrium structure, and that's what. सेकेंडली एक और बात है प्रोफेसर अमरजीत, एंड दैट इज मैंने ये नहीं कहा कि मैंने जो एनर्जी कॉरेस्पॉन्डिंग टू इंटरेक्शन बिटवीन न्यूक्लियाई थी उसको 0 मानना हुआ है। नो, मैंने कहा भाई ये कांस्टेंट है, इसको मैं अलग से कैलकुलेट करके ना जो एडिशन सब्ट्रैक्शन करनी होगी वो कर लूं। Right, sir. Right. So it is there. Actually, we have not removed it just from the. Mic it off, please. Sorry. Yeah. So it's just like we are calculating that energy, but for avoiding some computation cost, and we have kept it separate so that we just हमें उसको सारा देखिए, आप कहीं जब जा रहे हैं, मान लीजिए यात्रा पे निकले और आप यात्री हैं, शादी में पहुंचे, आप ऐसा तो नहीं करते ना कि अपना एटीकेट के साथ पूछते हैं, आप कहते हैं यार एटीकेट मेरा कांस्टेंट है, इसको मैं रख देता हूँ, जाके अपना फ्री होकर के घूमूंगा। yes, जब एटीकेट की जरूरत होगी इसको उठा लूं। very true. तो आपको हंसी आएगी मेरी एग्जांपल में, भाई प्रिसाइजली दिस इज व्हाट यू आर डूइंग। Yes, sir. This is very appropriate example. Actually, we understand it better. Yes. Yeah. So thank you, sir. You can move ahead now. Okay. तो अब हम वो फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर थ्योरी जो है उसको हम उस तक हम पहुंच चुके हैं, एंड दिस इज अ ग्रेट व्हाट यू कॉल माइलस्टोन व्हिच वी हैव अचीव्ड इन moving towards understanding the electronic structure of materials. Very good. अब देखिए 1920 से 1930 के बीच में हमारे पास क्या हो रहा था, हम अभी सिर्फ अपने एटम्स के या एलिमेंट्स पे ही फंसे हुए थे, पर वो एटम्स और एलिमेंट्स के बारे में भी हमको बहुत नॉलेज था। इन द सेंस हमारे पास पीरियोडिक टेबल था, हमें पीरियोडिक टेबल में कौन सी चीज कहाँ पे पड़ी हुई है, कैसे पड़ी हुई है, क्यों वहां पड़ी हुई है, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर की मदद से वो हमें समझ में आने लग गई थी। The moment we were knowing that there are so many number of electrons, I was knowing how to distribute these electrons in different orbitals.
इस प्रॉब्लम को सबसे पहले देखा थॉमस ने, फिर देखा फर्मी ने। उन दोनों ने जो मॉडल दिया वहां पे पहली बार उन्होंने, जिसको हम बोलते हैं ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करी। उन्होंने इलेक्ट्रॉन को डिस्क्रीटली देखने की कोशिश नहीं करी, उन्होंने जिसको कहते हैं कंपाउंडियम की तरह देखने की कोशिश करी। उसके बाद हार्टली आए, हार्टली ने एक अप्रोक्सीमेशन लगाई, फिर हमने बस लेकर आ गए, फॉर्ट आ गए स्क्रीन पे। मतलब इन लोगों ने इस डिबेट में तकरीबन वो जो कठिनाइयां थी उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की, और इन्हीं कठिनाइयों को जो हमने सोचा कि हम सॉलिड्स में जाकर के, विच इज ए कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स टिपिकली ऑफ द ऑर्डर ऑफ एवोगाड्रोस नंबर, हम कैसे उनको समझें। हमारे पास एटम्स तो समझ में आ रहे हैं, बट ये जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम बन जाता है, बहुत बड़ा सिस्टम बन जाता है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ एटम्स आर इन्वॉल्व्ड, नॉट ए सिंगल एटम, इसको कैसे मैनेज करें। थॉमस और फर्मी ने क्या किया था, उनकी भी सोच ये थी कि भाई एटम बड़ा होता जा रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, इनको कैसे हैंडल करें, कोई इजी तरीका है। सो दे ब्रॉट इन द कांसेप्ट ऑफ डेंसिटी एंड दे वर एबल टू एक्सप्लेन एक्चुअली द ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ हेवी एटम्स। तो जब कोहन ये सारी चीजें करने की कोशिश कर रहा था, शाम एंड कोहन की जो टीम थी, वो ये चीजें उनको पता थी कि ऐसे ऐसे होता है। बाकी लोगों ने तो हिम्मत नहीं करी, बट कोहन ने इसको आगे बढ़ाने की हिम्मत की। और ये अप्रोक्सीमेशंस क्या थी डिफरेंट, इनके बारे में ना हम सोचने की कोशिश करें। अब देखिए, मेरे पास ये वेव फंक्शन है, आई होप यू आर एबल टू सी द क्वेश्चन साइड, और मैं इसको बोल रहा हूं दैट दिस इज ए फंक्शन ऑफ ऑल द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जितने इलेक्ट्रॉन है, कैपिटल एन इलेक्ट्रॉन्स है, ये उनके कोऑर्डिनेट्स। Sir, you have not shared the slides. Oh, sorry, Yeah, sorry. please. I'm so sorry. Okay. So, is it visible now? Yes. Yes, sir. Yes. Yes, it is visible, sir. Okay, fine. तो मैं क्या कह रहा था कि ये जो मेरे पास श्रोडिंगर इक्वेशन बनी हुई थी, ये श्रोडिंगर इक्वेशन को हम जब देखते थे तो ये हमारे पास वेव फंक्शन नजर आता था ना। दिस वेव फंक्शन वाज ए फंक्शन ऑफ ऑल द पोजीशन इन coordinates of the electrons, right? और अगर हम एक छोटा जैसा स्टेप लें, वो ये कहें कि let us forget about the interaction between the electrons and let us say that we have electrons which are like a free electron gas, तो यही इक्वेशन हमको कैसे नजर आती है? ओके, तो जरा हम थोड़ा सा पीछे जाने की कोशिश करें। हमारे पास देखिए ये इक्वेशन कैसे नजर आती का मतलब ये था कि हमारे पास जो हैमिल्टोनियन है उसमें से हमने जो इलेक्ट्रॉन के बीच की इंटरेक्शन थी उसको खत्म कर दिया। दैट वाज दिस इंटरेक्शन। देखिए यहाँ पे हमने इसको डिफाइन करने की कोशिश की। एक हमारे पास H नॉट हैमिल्टोनियन है और उसके साथ एक इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन बैठी हुई। हमने कहा चलो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में हम क्या करते हैं, इस इंटरेक्शन को भूल जाते हैं। Then what happens here is very simple. My Schrödinger equation has become on the left hand side sum of the Hamiltonians of each of the electrons. It is like a free electron gas, and then I will say, all right, when there is no interaction among electrons, can I not say that the wave function can be treated as a product of the free electron wave function itself? तो हमने यहाँ पे ये ट्रिक लगाने की कोशिश करी। हमने कहा कि यहाँ वैसे करें। अगर आप इसको ध्यान से देख पा रहे हो जो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूँ। व्हाट वी हैव डन इज, हमने ये जो श्रोडिंगर इक्वेशन थी उसमें जहां पे हमारे पास इंटरेक्शन
सिंगल इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन, ये इंडिपेंडेंट है इलेक्ट्रॉन। और ये सेपरेट करने का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट वन प्लेस हैज नथिंग टू डू विद प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एट probability of let me repeat it. Probability of finding the electron at one place is independent of the possibility of any other electron in the system. अगर मेरा पहला इलेक्ट्रॉन R1 पे बैठा हुआ था, उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वहां पे होने की, वो इस बात पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करती कि दूसरा इलेक्ट्रॉन कहां पे बैठा है। ऐसे ही दूसरा बाकी इलेक्ट्रॉन्स से बिल्कुल वाइट नहीं है और इंडिपेंडेंट है। सो यू कैन राइट डाउन दिस एज ए प्रोडक्ट, जिसको हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन अटॉमिक। बल्कि सॉलिड स्टेट फिजिक्स में जब हम मेटल्स की स्टडी करने लगते हैं तो सबसे पहला मॉडल जो हमारे हाथ में आता है वो है ही फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल। फिर हम उसको नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल बनाने की कोशिश करते हैं और फिर उसके बाद हम वो जो बैंड स्ट्रक्चर की तरफ जाने की कोशिश करते हैं तो हम कुछ और चीजें भी बीच में लेकर के आते हैं। बट फॉर द टाइम बीइंग, फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन व्हिच आई एम मेकिंग इज फ्री इलेक्ट्रॉन अप्रॉक्सीमेशन, एंड हम बोलते हैं पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ माय श्रोडिंगर इक्वेशन विल बी ए प्रोडक्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन, एंड दिस ईच वन ऑफ दीज इज नथिंग बट सॉल्यूशन ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन श्रोडिंगर इक्वेशन। मैंने जो सिंगल इलेक्ट्रॉन्स का वेव फंक्शन है उसको फाई से रिप्रेजेंट करा है और जो टोटल वेव फंक्शन विच इज प्रोडक्ट ऑफ ऑल दीज आई एम रिप्रेजेंटिंग दैट बाय साइन। ओके, अब ये जो एप्सिलॉन आई है, जो मैंने इसको यहाँ पे लिखा, तो ये मैं मान के चल रहा हूँ ये एप्सिलॉन आई इज द स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू, दैट इज आई एम टॉकिंग ऑफ द ग्राउंड स्टेट। और जैसे जैसे मैं डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स की तरफ जाने की कोशिश करूंगा तो आई कैन सी दैट देयर इज अ हायरार्की ऑफ दीस एनर्जीज। एक इलेक्ट्रॉन की लोएस्ट एनर्जी एंड आई स्टार्ट फिलिंग अप द इलेक्ट्रॉन। अगर हम इसको एनर्जी लेवल फिलिंग के साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे कि जो मेरा nth इलेक्ट्रॉन है से इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एंड रेस्ट ऑफ द हायरार्की इज इन टर्म्स ऑफ दिस इनइक्वालिटी व्हिच आई हैव रिटन। तो कहानी आई कि ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है इट्स अ वेरी गुड स्टार्टिंग पॉइंट। हमने श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करनी है। लेट अस स्टार्ट विद ए व्हाट यू कॉल टेस्ट सॉल्यूशन और ए ट्रायल फंक्शन और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब हमने क्या किया, वो जो ट्रायल फंक्शन था उसको सब्स्टिट्यूट करा अपने श्रोडिंगर इक्वेशन में और सॉल्व करने की कोशिश की। और हमने क्या देखा कि ये जो मेरे पास सम पड़ा हुआ है, इस सम में हर टर्म एक एक इलेक्ट्रॉन की हैमिल्टोनियन को रिप्रेजेंट करती है। और जब मैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं तो ये ऑपरेटर एक्ट ओनली ऑन फाई 1 गिविंग मी एप्सिलॉन 1 मल्टीप्लाइड बाय फाई 1 आर एंड बाकी की चीजें ऐसे ही ऐसे उसके साथ मल्टीप्लाई हुए बैठनी है। तो आई गेट हियर for the first term epsilon 1, for the second epsilon 2 and so on, so that this totally is sum of these energies itself. So this is the free electron approximation. But इसके साथ एक प्रॉब्लम थी। वो प्रॉब्लम क्या थी, अब उसके बारे में हम चिंता करने की कोशिश करें। और ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमको पहले ही मिला हुआ था जब हम इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस के अराउंड किसी एक टिपिकल एटम में रखने की कोशिश करते। ये जो मेरा वेव फंक्शन है जो मैंने प्रोडक्ट की तरह लिखा, इस वेव फंक्शन में एक फ्लॉ है। वो फ्लॉ क्या है कि ये वो फंडामेंटल रूल जो कि इलेक्ट्रॉन के वेव फंक्शंस का है उसको फॉलो नहीं करता। और रूल क्या है, वो है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। आई होप ईच वन ऑफ यू सिटिंग हियर नोज इट। मैं जरा इसकी डेफिनेशन आपसे पूछना चाहता हूं। आई एम कमिंग बैक टू, है ना, हम जरा समझने की कोशिश कर लेते हैं। अब मुझे बताओ कि पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है क्या? You can just tell me.
एक आ जाओ भाई, कंप्यूटर के आगे आ जाओ, बोल दो आकर के आगे आके आ जाओ। कंप्यूटर के आगे इसको ऐसे ही बोलो आप। आप बैठ जाओ, बोलिएगा। No, no two electrons have the same spin in the same orbital. Okay, very good. You can go back to your seat. Anybody else who would like to make the statement? Yes, that is what is great. You should interact. सर नो टू इलेक्ट्रॉन्स हैव सेम क्वांटम नंबर्स, ऑल सेम क्वांटम नंबर नहीं हो सकते हैं सर। All यस same सर, quantum number नहीं होते। यस सर। यही बात जैसे जो पहले वाली आई थी ना मैडम, उन्होंने भी यही बात करी थी। She also said the same, पर थोड़ा सा उन्होंने कहा स्पिन सेम नहीं हो सकती है। जैसे उन्होंने कहा सेम स्पिन नहीं हो सकती है, तो उन्होंने कहा बाकी के 3 क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं, पर सारे नहीं हो सकते सेम। She was also saying the same. ये डेफिनेशन ना +2 की डेफिनेशन, +2 में चल जाती है। बट हमारी जो एमएससी की डेफिनेशन है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की, वो बिल्कुल अलग है। उसमें वो इलेक्ट्रॉन की बात ही नहीं करते हैं। वो डेफिनेशन बड़ी यूनिवर्सल डेफिनेशन। एंड यू नो व्हाट इज दैट डेफिनेशन? दैट सेज दैट द वेव फंक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हैज टू बी एंटी सिमेट्रिक. इट कैन नॉट बी ए सिमेट्रिक थिंग। एंटी सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, ये मैं आपको ये यहां पे दिखाने की कोशिश करता हूं। लेट मी वंस अगेन गेट माय स्क्रीन बैक। So I am coming here. हमने अभी क्या करा, हमने कैपिटल फाई को लिखा फाई 1 into फाई 2 3 and so up to say फाई n. अब प्रोडक्ट में क्या होता है, आप अगर फाई 1 को बाद में लिख लो, फाई 2 को पहले लिख लो, इनकी पोजीशंस का कोई मीनिंग नहीं है, साई पे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो ये that means when I have written this wave function as a product of single particle wave function, then I have forgotten about a very important element, that this wave function should have changed sign if I had changed the positions. पर यहाँ तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये एक बहुत बहुत ही क्रूशियल पॉइंट था जिसको हम भूल रहे हैं। अमरीत जी जरा आप म्यूट करेंगे सिस्टम को, आवाज आ रही है इसमें, नॉइज। या आई थिंक यू हैव म्यूटेड इट नाउ, नो प्रॉब्लम, एंड दैट्स गुड। हम लोग वापिस यहाँ पे आ गए। हमने ये देख लिया कि जो प्रोडक्ट में हमने वेव फंक्शन को लिखा है इन टर्म्स ऑफ सिंगल पार्टिकल वेव फंक्शन, इट इज नॉट हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ एंटी सिमेट्री विद रिस्पेक्ट टू एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल, एंड दिस इज समटाइम्स आल्सो कॉल्ड स्वैपिंग ऑफ पार्टिकल। ओके, अगर आप स्वैप करेंगे तो साइन चेंज होगा। और यही टर्मिनोलॉजी आप जब मुझे बता रहे थे ना कि सारे क्वांटम नंबर 2 इलेक्ट्रॉन्स के एक ऑर्बिटल में सेम नहीं हो सकते हैं, इसको हम एक और सेंस में बोलते हैं, दैट नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन ऑक्यूपाई द सेम इलेक्ट्रॉनिक स्टेट। तो हमारे पास सेम इलेक्ट्रॉनिक स्टेट को अगर ऑक्यूपाई करना है, जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तो स्पिन उनकी अलग अलग होनी चाहिए। उस दूसरा हमने क्या किया था, हमने कूलम टर्म को ड्रॉप ऑफ कर दिया था फ्रॉम श्रोडिंगर इक्वेशन। जबकि वो टर्म ड्रॉप करने का मतलब ये था, वो तो कंपेरेबल मैग्नीट्यूड की है जो बाकी की टर्म्स थी हैमिल्टोनियन में। उसको ड्रॉप करने के लिए का मतलब तो था, आप ये तो नहीं मान सकते कि वो परटर्बेशन है, उसको भूल जाओ, और मे बी यू विल बी एबल टू सॉल्व इट बाय अप्लाइंग परटर्बेशन थ्योरी ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। इट इज नॉट गोइंग टू वर्क लाइक दैट। इट्स वेरी वेरी सिंपल। तो हमने क्या किया, हमने कहा लेट अस
अंडरस्टैंड इन द कंटेक्स्ट ऑफ नॉट से n इलेक्ट्रॉन, थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए हम इसको सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के टर्म्स में बात कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन अप्रोक्सीमेशन में क्या देखने की कोशिश की, वो बहुत सिंपल था। वो हमने ये देखने की कोशिश की कि हमारे पास हमारा वेव फंक्शन हम कैसे लिख सकते हैं, और वो वेव फंक्शन हम लिखने की कोशिश करेंगे। एंड लेट अस ट्राई टू सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आई सेड हम उसको लिख सकते हैं लाइक दिस। हमने प्रोडक्ट ले लिया, ये भी हमें मालूम है कि ये 2 वेव फंक्शन 2 अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका मतलब है phi1 is not equal to phi2. Interestingly, there is another thing which we have done. If I try to find out a integral of this product phi1 r1 and phi2 r2 over whole of the space of interest to us, इनका क्योंकि एक दूसरे से कुछ लेना देना नहीं है, आंसर विल बी इक्वल टू 0। बट वो फंडामेंटल चीज जो इसमें मिसिंग है, एंटीसिमेट्रिक नहीं है। अब हमने देखा कि ऐसा चला, अरे ये एंटीसिमेट्रिक नहीं है, तो जरा हम कोशिश कर लेते हैं एंटीसिमेट्रिक बनाने। तो हमने क्या किया, वी वेंट ऑन ड्राफ्टिंग आवर टोटल वेव फंक्शन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम एज अ डिफरेंस ऑफ दीज 2 टर्म्स। अब इसमें आप क्या देखेंगे कि जब भी मैं कभी R1 को R2 से रिप्लेस करूंगा और R2 को R1 से रिप्लेस करूंगा, तो इसमें एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। आप देख सकते हो कि ये टर्म पहले आ जाएगी और ये दूसरे वाली टर्म बाद में चली जाएगी, एंड ऑटोमेटिकली देयर विल बी ए नेगेटिव साइन कमिंग। यू मे आल्सो आस्क मी कि 1/√2 कैसे आ रहा है। ये बेसिकली इज कमिंग बिकॉज ऑफ द काउंटिंग सिस्टम व्हिच वी आर एक्चुअली यूजिंग इन राइटिंग डाउन दिस काइंड ऑफ ए डिफरेंस। अगर n पार्टिकल सिस्टम मेरे पास होता तो ये नंबर होता 1/√of n फैक्टोरियल। ओके, और ऐसा होने से क्या हुआ, हमारी टर्म एंटीसिमेट्रिक हो गई, और हमने ये भी देखा कि 1/√2 का फैक्टर जो है, इसने एक बात का ध्यान रखा कि एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 1 ही रहा, एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन 2 ही रहा, कोई एडिशनल एनर्जी नहीं इसके साथ आकर, और ये हमारे पास टोटल एनर्जी बन गई सिस्टम। ये जो मैंने वेव फंक्शन लिखा था, उस वेव फंक्शन को मैं अगर ध्यान से देखूं तो इस फॉर्म में भी मैं लिख सकता हूं, विच इज दैट ऑफ ए मैट्रिक्स फॉर्म। और ये फॉर्म में लिखना जो है ना, वो अपने आप में एक चीज को हमें बताता है। वो क्या बताता है कि कभी भी अगर आप रोज या कॉलम्स किसी मैट्रिक्स के स्वैप करते हो तो एक एडिशनल नेगेटिव साइन आ जाता है। आई होप यू आर एग्रीइंग विद मी। और ये जो नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर यहाँ पे बैठा हुआ है, ये इसलिए भी यह जरूरी था कि हमारी जो टोटल प्रोबेबिलिटी बने वो 1 के बराबर। Now I'm talking of total probability, please mind it. और अगर मुझसे कोई ये पूछे कि बताओ इलेक्ट्रॉन की चार्ज डेंसिटी क्या है, तो मेरे पास एक फॉर्मूला पता लग गया, वो ये है, ये फॉर्मूला nr is equal to phi1r whole square plus phi2r whole square. That is density corresponding to the first electron plus density corresponding to the second electron. Now this is which density? Electron charge density. And for a system with capital N number of particles, it is merely this sum. अगर आप पूछोगे सर इसमें बाकी सब चीजें तो नजर आ रही हैं, मगर इलेक्ट्रॉन गेन ही नजर आ रहा है, तो टिपिकली स्पीकिंग मेरे इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या हुई है जब मैंने एटॉमिक यूनिट्स इस्तेमाल की? 1. ओके, एंड वी फाइंड दैट या दिस इज रीजनेबल। अब आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज पता लगती है कि मेरी सारी स्कीम ऑफ थिंग्स में जब मैं सिमुलेशंस कर रहा हूँ, जब भी मैं कहता हूँ दैट आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट द वेव फंक्शन ऑफ द सिस्टम, बेसिकली आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी ऑफ द सिस्टम इटसेल्फ, और वो इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी के मैं प्रोफाइल बनाता हूँ। आपको याद है मेरी फर्स्ट जो सेकेंड लेक्चर में मैंने आपको हाइड्रोजन
मॉलिक्यूल के कुछ ग्राफ जैसे बताए थे, जिसमें पहले वो सारे अलग अलग थे, जब वो नजदीक आए तो उसमें कैसे बॉन्डिंग हुई। तो वो जो कर्व आपको नजर आ रहे थे, दे वर नथिंग बट द इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी मैप्स। ओके, और ये वाला जो हमारे पास डिटर्मिनेंट बनता है, क्योंकि अल्टीमेटली इस मैट्रिक्स को लेने के बाद हमें कैलकुलेट करना है, और इसीलिए आमतौर पे आप लिटरेचर में देखोगे कि यहाँ पे जो आपको ना नजर आ रहा है मैट्रिक्स की तरह का ब्रैकेट, ये नहीं होता है, ये ना वो होते हैं मॉडुलस, टेलिंग अस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट नथिंग बट द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस। इसको हम रेटेड डिटर्मिनेंट का नाम भी देते हैं। अब क्वेश्चन क्या आता है, that can we take a single particle description and include Coulomb repulsion between electrons? तो इसका आंसर देने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए हम ना क्वांटम मैकेनिक्स को भूल जाते हैं और हम विजिट करेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को, और हम अपने आप से पूछेंगे कि अगर कोई मुझे इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी दे दे तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि बैक कैलकुलेशन करके मैं ऐसे चीज को पता लगा लूं जिसको मैं बोलता हूं पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम। और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो अभी मैं दिखा नहीं रहा हूं H0 में, अगर वो डाल दूंगा तो मेरा सिस्टम ट्रूली जो है वो इंटरेक्शन अमंग इलेक्ट्रॉन्स को भी इंक्लूड कर लेगा। ओके, तो मेरा एक क्या यहाँ पे रोल है, वो रोल ये है कि भाई आपको पॉइसन इक्वेशन पता है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आपने पढ़ी हुई है, आपने कैलकुलेशन करी, चार्ज डेंसिटी निकाली, इस पॉइसन इक्वेशन में उस चार्ज डेंसिटी को डाला और ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करी, और आपने क्या किया, इलेक्ट्रॉन की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी थी उसको कैलकुलेट करके बता दिया पूरे सिस्टम। जब मैं ऐसा करता हूं तो मैंने एक और अप्रोक्सीमेशन लगाई जिसको हम बोलते हैं मीन फील्ड अप्रोक्सीमेशन। तो देखो स्टार्ट किया था हमने बॉर्न अप्रोक्सीमेशन से, फिर हमने फ्री इलेक्ट्रॉन अप्रोक्सीमेशन लगाई, फिर हमने कहा नहीं इलेक्ट्रॉन में तो इंटरेक्शन भी है, उसको भी वापस लाना है। तो हमने कहा हम वो टर्म वैसे की वैसी वापस नहीं लाएंगे, जो मेरे पास फ्री इलेक्ट्रॉन सिस्टम की चार्ज डेंसिटी है उससे मैं कैलकुलेशन करने की कोशिश करूंगा कि this corresponds to what electrostatic of the system, and when I am able to do that we call it a mean field approximation. Okay, तो ये जो मेरे पास इक्वेशन थी उसकी मदद से मैंने क्या निकाला, उसको हम बोलते हैं हार्ट्री पोटेंशियल। ये किसी भी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की अगर आप बुक में जाओगे ना, वहां पे आपको ये मिल जाएगा कि इसका जो सॉल्यूशन होता है दैट इज एक्चुअली सॉल्विंग दिस इंटीग्रल, है ना। और आप समझने भी लग गए कि ये dr dash is nothing but volume element. When I multiply this by the charge density, this is giving me in that space the charge element. और जब मैं चार्ज एलिमेंट को r माइनस r डैश से डिवाइड कर रहा हूं तो मेरे पास क्या आ रहा है, पोटेंशियल। और जब मैं सारे पोटेंशियल को सम कर दे रहा हूं तो मेरे पास वो बीम फील्ड अप्रोक्सीमेशन वाला हार्ट्री पोटेंशियल आ रहा है। इज दैट क्लियर अभिजीत जी? You have got it? Sir, yes, I understand that you have applied this electrodynamics theory here and forgotten the quantum mechanics for the moment, the wave function of this, and this Poisson equation has been solved, but this solution below, just below this Poisson's equations, this integration, I'm not getting it for the moment. Actually, when you are going to solve it, Yes. इसका इक्वेशन का पॉइसन इक्वेशन का जो फॉर्मल सॉल्यूशन है वो ये आता है। Okay. और इसके मतलब ये है कि अगर जो नॉलेज मेरे पास चार्ज डेंसिटी का मैंने कैलकुलेट करा हुआ है इसको यहाँ पे डाल दूं तो मेरे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल रीजनरेट हो गया विदाउट सॉल्विंग दैट E square upon R1 minus R2 kind of equation. All right. So I get a potential in terms of electron density. That's what Yes.
अब देखिए, मैंने आपसे इसलिए ये सवाल किया, आपने मुझे पिछले लेक्चर में पूछा था Right, sir. कि सर फंक्शन और फंक्शनल में क्या फर्क है। Yes. यहाँ से वो नाम डेंसिटी फंक्शनल थ्योरी एमर्ज करता है। आपने देखा जो मैं कह रहा था कि इंटीग्रल फाइंड कर रहे हैं एरिया फाइंड करने के लिए। Yes. Can you now see here that your VHR is actually a functional of NR, not a function of NR. Yes. This signal number which you are getting because of all the values which are known to you regarding NR. Okay. This is the emergence of the term density functional theory. Okay, sir. So, yeah. Yeah, है ना, got it. मजेदार चीज है ना। Yes. हम यहाँ तक पहुँचते भी नहीं है, हम असल में हम लगे होते हैं कैलकुलेशन करने से। Very true, sir. Yes. So this is the origin from where we can know that Yes. why we are calling it a functional. अब देखिए, ये जो पोटेंशियल है, ये जब बन गया मेरे पास, हर एक इलेक्ट्रॉन इस पोटेंशियल को देख रहा है, राइट? एंड व्हाट इज हैपनिंग? अब मैं क्या करता हूँ, अपनी जो मैंने प्री इलेक्ट्रॉन क्वांटम मैकेनिक्स वाली इक्वेशन लिखी थी, उस पर रिविजिट करूं। अगर आप यहाँ देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर ध्यान से, बॉटम में मैंने जो ब्लू बैंड में लिखी हुई है इक्वेशन, इसमें आपने ना उस सिंगल फ्री इलेक्ट्रॉन इक्वेशन में ये अब पोटेंशियल ऐड कर दिया, एंड दैट इज व्हाई आई एम कॉलिंग इट एज मीन फील्ड अप्रोक्सीमेशन, बिकॉज नाउ दैट सिंगल इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ दिस VHR is seeing the presence of all other electrons. Is that okay? Why the term mean field? Density functional भी क्लियर हो गया और मीन फील्ड भी क्लियर हो गया। और देखो मजेदार बात एक है यहाँ पे कि अभी तक हमारी जो इक्वेशन है फॉर एन n पार्टिकल सिस्टम हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलो आगे, yes or no? Yes, sir. Please proceed. Okay. So I think मैंने इसको काफी एक्सप्लेन कर दिया है, और ये मेथड सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस करा था सॉलिड स्टेट के कंटेक्स्ट में, सॉलिड स्टेट फिजिक्स के कंटेक्स्ट में, वो किया था हार्टली। हार्टली जो थे ये फादर और सन टीम के, और सन जो था ही वॉज गुड इन थ्योरी, फादर वॉज गुड इन न्यूमेरिकल कैलकुलेशन। और इमेजिन करो कि फादर ने कितनी अपने बेटे की मदद की होगी एक सिंपल कैलकुलेटर पे बैठ के हाथ से कैलकुलेशन करने पे और इन इक्वेशंस को एक्सप्लेन करने के लिए। अब हमारे पास क्या हुआ, हमने देखा कि जो ये हमारे पास ऊपर इक्वेशन पड़ी हुई है, इसमें हमें क्या क्या चीजें सॉल्व करनी पड़ी। वो ये है, हमने फाई आर लिया कहाँ से, फर्स्ट इक्वेशन से, उससे हमने क्या स्टार्ट किया, हमने डेंसिटी निकाली। डेंसिटी निकालने के बाद हमने क्या किया, ये पॉइसन इक्वेशन सॉल्व करी। इस स्टेप से जो डेंसिटी आई उसको फिर दोबारा से लेके गए, ये सब करते चले गए टिल द वैल्यू ऑफ द एनर्जी विच वी आर गेटिंग ईच टाइम इज सच दैट इन द लास्ट टू स्टेप you will find if the answer of the values of E is not differing by say of the order of 10 raised to the power -6, we will assume that our answer is reasonably correct. So this is what is known as self-consistent approach of solving this set of equations. यही हम कंप्यूटर पे करते हैं। कंप्यूटर किस चीज में बड़ा काम आती है? कंप्यूटर काम आती है तो गधे वाले काम करने के लिए। जो गधे वाले काम होते हैं ना, लगा दो चलो शुरू हो जाओ, सेल्फ कंसिस्टेंटली लूप चला हुआ है, कैलकुलेशन होती जा रही है। जैसे ही एक स्टेप लूप का खत्म होता है, वो चेक करता है पीछे क्या आंसर था, अब क्या आंसर आया, डिफरेंस देखा, लेस देन 10 raised to the power -6, very good, accept it, otherwise once again go in the loop, keep on doing it till that tolerance condition is not satisfied. Okay, so now let us try to see what has happened.
we have actually done the following. This is what we have achieved. And that is that this 3n Schrödinger equation, 3n dimensional Schrödinger equation has been reduced to n 3-dimensional Schrödinger equations. 3n dimensional equation को solve करना और एक 3-dimensional Schrödinger equation को solve करना is much easier task for me. और इस इक्वेशन को सॉल्व करके मेरे पास तो एप्सिलॉन 1, एप्सिलॉन 2, एप्सिलॉन 3 आ जाते हैं, उनको ऐड करता हूँ, टोटल एनर्जी आ जाती है मेरे पास। अब यहाँ अभी तक जो कुछ हमने डिस्कस किया उसमें और क्या लैक करता है उसके ऊपर हमें ध्यान देने की जरूरत है। जैसे क्लासिकल पार्टिकल होते तो हम हार्टली मेथड से खुश हो जाते, और हमने देखा ये हार्टली मेथड जब हम इससे कैलकुलेशन करते हैं तो क्वांटिटेटिवली मैच नहीं होता ढंग से, और हमें फिर जाना पड़ता है वापस ड्राइंग टेबल को देखने के लिए कि जो हमने श्रोडिंगर इक्वेशन में एच नॉट लिया था और उसके साथ जो हमने पोटेंशियल वाली टर्म लिखी थी, उस पोटेंशियल वाली टर्म में तो नहीं कुछ मिसिंग है। एंड वी फाइंड दैट देयर आर टू थिंग्स व्हिच आर मिसिंग इन दैट। वन इज नोन एज एक्सचेंज पोटेंशियल and other is known as correlation potential. Okay. Right. So once again we will seek a question. What is that? ये वो जो slated determinant हमने wave function का लिखा था ना, जो कि बड़ा natural choice थी. We wanted the things to be antisymmetric, the wave function of the system to be antisymmetric. Because you are dealing with electrons. तो इसमें अगर हमने ना कूलम रिपल्शन नहीं डाली हुई है, देखिए ये बात अलग है, जैसे आपने कहा कि देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है सिंगल, वो बाकी इलेक्ट्रॉन्स को फील कर रहा है, बड़ी अच्छी बात है, बट दैट डजंट मीन that it is feeling the repulsion among electrons. आप बोलोगे क्या फील तो कर ही रहा है, वो क्या मतलब है आपने इससे बहुत इंपॉर्टेंट मतलब। एक तो ये था कि दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के पास नहीं आते बिकॉज ऑफ कूलम रिपल्शन, सेम चार्ज है, और उसका मतलब ये है कि हर एक इलेक्ट्रॉन के आसपास एक रीजन है जिसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन आने की हिम्मत भी नहीं करता है, उसको हम बोलते हैं कूलम होल। इसका मतलब है अगर आप इसको देखने की कोशिश करोगे, सिस्टम को विजुअलाइज करने की कोशिश करोगे तो कुछ ऐसा नजर आएगा। लेट मी टेक a new page. I'm adding one, and let me say that I have this box in which electrons are lying. आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन है बड़ा कंटिन्यूअस सिस्टम। What I am saying is no, it is not continuous. अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो उसने ना अपने इर्द गिर्द एक रेड सर्कल लगाया कि भाई दूसरा इलेक्ट्रॉन तो इसमें नहीं आ सकता, दूर रही हो मेरे से। तो ऐसे लग रहा है मुझे जैसे ना मैंने कूलम होल्स का एक सिस्टम बना दिया हो। ये सब कूलम होल्स हैं, these are not atoms, these are the regions only, and they are actually depicting what? They are depicting Coulomb repulsion among individual electrons. यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट एक इलेक्ट्रॉन जो इसके नजदीक आने की कोशिश करता है उसको पता लगता है कि नहीं भाई ये तो आने नहीं दे रहा है अपने टेरिटरी में, मुझे ये तो बाहर रहता है। तो जो हमने श्रोडिंगर इक्वेशन लिखी, क्या उस श्रोडिंगर इक्वेशन में वी हैव टेकन केयर ऑफ दिस कूलम रिपल्शन पार्ट और नॉट? दिस इज व्हाट इज बीइंग एक्चुअली टॉक्ड अबाउट व्हेन वी आर थिंकिंग ऑफ thinking of this part which we were trying to express in terms of one is exchange potential, other is known as correlation potential. ऐसे हमारे पास ना एक होल बनता है जो कूलम रिपल्शन की वजह से नहीं है, उस स्पिन की वजह से। अब देखो हम कैसे विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं, वो क्या है, वो अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो मैं अब ये दिखाने की कोशिश करूंगा आपको कि अब इसी सिस्टम में
let me forget about charge for the time being. But I say that I have an electron with a spin. There is another electron also with a spin. Third also with a spin. अब इसमें क्या है कि अगर ये ऑपोजिट स्पिन वाले हैं तब तो ये बोलेगा कोई बात नहीं, आजा मेरे साथ पेयरिंग कर सकता है। पर अगर सेम स्पिन वाले हैं तो ये क्या करेगा, दूर से मेरे पास बता। So on one side I have made a Coulomb hole. On the other side also I have got a exchange hole. This is arising because of the spin, presence of the spin itself. अब देखिए, let me go back to electronic practice. वहाँ पे तो Pauli's exclusion principle में ना very systematically भाई आप एक इलेक्ट्रॉन के साथ दूसरा इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन वाला नहीं बिठा सकते सेम एनर्जी लेवल, उसको मैनेज कर। यहाँ पे तो मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम सीइंग ए कंपोजिट सिस्टम इन विच वेरी लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सिटिंग एंड इंटरेक्टिंग विद ईच अदर. आई हैव टू मेक श्योर दैट ऑल पॉसिबल interactions which may arise should be taken care of, and we are finding that this exchange hole has got no meaning in a classical system. It has a meaning only in the quantum mechanical system. And I hope you will start appreciating कि हम वो जो missing link है उनको ढूंढने की कोशिश करते हैं। और इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक्सचेंज पोटेंशियल, हमें चाहिए कोरिलेशन पोटेंशियल। इज दैट क्लियर? इज दैट ओके? Yes, I think it's sufficient. you have sufficiently explained it. If there is no other questions from the participants, you have sufficiently explained it, so you can just proceed, sir. Okay, fine. तो हमने देखिए क्या किया, हमने सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी और हमें ये बताने की कोशिश भी करी कि हम क्या कर सकते हैं और हमें इसको कैसे देखना चाहिए। तो हमने ना नई किस्म की इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शंस को आइडेंटिफाई करा और ऐसी सिचुएशन में क्वांटम मैकेनिक्स का एक मेथड है तो हमारे बड़ा काम आता है, उसको हम बोलते हैं वेरिएशनल प्रिंसिपल। आई होप somebody must have taught you in MSc in quantum mechanics method of variational principle. और उसके जो स्टेप्स हैं वो क्या है, वो ये रहते हैं कि हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास एक लोएस्ट एनर्जी की स्टेट है और उसका वेव फंक्शन साई है, उसकी लोएस्ट एनर्जी ई। तो ये स्टेट क्या है, इस स्टेट को पता करने के लिए हमने एक ये श्रोडिंगर इक्वेशन सेटअप करी और कहा कि हमारे पास एक हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, बिकॉज एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन इज नथिंग बट व्हाट वी कॉल द एनर्जी आइगन वैल्यू। तो ये ब्रैकेट नोटेशन में अगर हम लिखें, जो कि बहुत सिंपल नोटेशन रहती है, दिस इज व्हाट इज टू बी डन, टेक द ऑपरेटर, टेक द ट्रायल वेव फंक्शन, कैलकुलेट दिस वैल्यू ऑफ द एनर्जी। और ये ट्रायल वेव फंक्शन का क्या नाम लिया, मैं उसको ट्रायल वेव फंक्शन क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जब मैं ये प्रोसेस करता हूं किसी ट्रायल वेव फंक्शन को तो वैसे ही जैसे पहले हो रहा था, आई गेट द वैल्यू ऑफ एनर्जी एज वेल एज आई गेट द वेव फंक्शन आल्सो। तो यहां पे भी वही स्कीम चलती है, तब तक मुझे वो ट्रायल्स करते रहेंगे। तो देयर इज ए सेंस ऑफ सेल्फ कंसिस्टेंसी ऑफ इट, ओके। और इस चीज से बचने के लिए कि हम उसको सेल्फ कंसिस्टेंटली करने की कोशिश करें, हम क्या करते हैं, हम ये जो वेरिएशनल प्रिंसिपल का एक्चुअल मेथड है उसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। वी ट्राई टू फाइंड दिस चेंज इन एनर्जी विद चेंज इन वेव फंक्शन, एंड व्हेनेवर दिस एनर्जी विल बी इक्वल टू 0, वी नो दैट वी आर हैविंग
that wave function which corresponds to the lowest state, right? और उसके बाद जो हमारे पास इक्वेशन बनती, उस इक्वेशन को हम हार्ट्री-फोक इक्वेशन कहते हैं. So we try to apply the variational principle for that. और वो हार्ट्री-फोक इक्वेशन हमारी अब ये बनी. इसमें आप देखोगे कि ये तो था ही था हमारे पास पहले, अब हमने एक और एडिशनल टर्म यहाँ पे लाया, ओके, जिसको हम Vx से रिप्रेजेंट करते हैं. And the consequence of bringing this here means that some kind of correlations which are there, those can be Coulomb correlation in terms of Coulomb hole, those can be spin correlation in terms of exchange hole, they are being taken care of. Okay. तो ये हमारे पास हार्ट्री-फोक इक्वेशन है. So we have moved forward from classical treatment of electrons in mean field approximation to real quantum treatment of electrons. मगर इससे क्या हुआ कि जो ये हमने यहाँ पे टर्म इंट्रोड्यूस कर ली, दिस इज ए काइंड ऑफ ए नॉन लोकल टर्म. ये ना डिफरेंट जगहों पे जाकर के ना इसकी वैल्यू डिफरेंट ऑलरेडी डिफरेंट है. So this has brought in a complexity into the system. अब हर जगह पे पोटेंशियल क्या होएगा उसका मुझे ध्यान रखना पड़ेगा. So this is a slightly complex situation, right? तो ये जो नॉन लोकल पोटेंशियल था, इसको हम खत्म करने की कोशिश करेंगे इस स्टेज पे जाकर, right? And this non-locality actually is because of the fact that I have to do an additional integration because of the presence of this R dash sitting here when my electron is seeing other things around the also. So very good. और इसी को हम क्या कहते हैं, ये हम कहते हैं हमने correlation की बात करी. And it says that because of Coulomb repulsion, the probability of finding an electron somewhere will decrease if there is another electron nearby. वही Coulomb hole वाली बात हो रही है. उसमें नहीं आप जा सकते, वो उसने अपना एक घर बना लिया है, इसमें नहीं आने दूंगा अगर सेम चार्ज वाली चीज पॉजिटिव होती है तो हम अलॉट कर देते हैं. That actually means that the probability of finding an electron somewhere will decrease if there is a second electron nearby. तो इसका मीनिंग क्या था देखो, अब हम ना फ्री इलेक्ट्रॉन अप्रोक्सीमेशन की कमी देख रहे हैं कि जो प्रोबेबिलिटी में फ्री इलेक्ट्रॉन अप्रोक्सीमेशन में सिंपली बाय टेकिंग द स्केल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ सिंगल पार्टिकल वेव फंक्शन देख रहे था. यहाँ पे जब मैं एक कंपोजिट वेव फंक्शन की बात करूंगा तो जो प्रोबेबिलिटी आएगी इट विल बी लेस देन द प्रोबेबिलिटी व्हिच आई वाज टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ व्हाट द फ्री इलेक्ट्रॉन गैस, फ्री इलेक्ट्रॉन अप्रोक्सीमेशन. तो जो पहला वेव फंक्शन था हमारे पास πr1 into πr2 वाला, वो एक्सेप्टेबल नहीं है, वो हमें ज्यादा वैल्यू दे रहा है प्रोबेबिलिटी, जबकि ऐसा नहीं होगा क्योंकि ऐसे प्लेसेस है जहां पे एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो दूसरे इलेक्ट्रॉन की जाने की संभावना कम हो जाती है. ओके, तो ये जो प्रोडक्ट फ्री इलेक्ट्रॉन अप्रोक्सीमेशन थी इसकी कमी यहाँ पे ना उजागर हो रही है. तो वी हैव नाउ इक्वेशन भी है. हमने क्या किया था, अपने पोटेंशियल्स को ना ऐड करा था, राइट, और हमने इसमें अब एक और एडिशनल चीज ऐड कर दी which will be say corresponding to correlation. अब ये जो हमारे पास एक कोरिलेशन आ रहा है, ये कूलम कोरिलेशन की वजह से भी हो जाता है और स्पिन कोरिलेशन की वजह से भी है. एक को हम कूलम बोलते हैं, दूसरे को हम एक्सचेंज बोलते हैं. ओके, और ये हमेशा सिंगल कोऑर्डिनेट के ऊपर डिपेंड करता है, नॉट ऑन द टू कोऑर्डिनेट्स. ये भी हमने इसमें अगर देखा कि मैं ऐसा पोटेंशियल डिफाइन कर लूं तो मेरे पास तो जो दो डबल इंटीग्रल करनी पड़ रही थी ना, जिससे अभी मैंने बात की, उससे मैं बन जाऊं. एंड दैट विल बी ए वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट.
तो हमारे पास जो सिंगल पार्टिकल इक्वेशन थी उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और इसमें ये जो VXR है और VCR है, अभी तक हमने इनकी ना सिर्फ चर्चा की है कैसे कि भाई ऐसे होने चाहिए। अगर कोई मुझे पूछे वो क्या होने चाहिए, ये मुझे पता, ये हमने स्पेसिफाई नहीं करे। मैंने बता तो दिया होनी चाहिए, स्पिन की वजह से तो पोटेंशियल होना चाहिए, पर वो कैसे कैलकुलेट करूं इसका नॉलेज मेरे पास नहीं, और इनकी एग्जैक्ट फॉर्म हमारे को आज तक भी मालूम नहीं। हमने इसमें अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं। जैसे आपने देखा होगा जब आपका वो फाइल बनी इनपुट फाइल, उसमें वो पूछता है आप कौन से वाली अप्रोक्सीमेशन इस्तेमाल करोगे, जनरलाइज्ड ग्रेडियंट अप्रोक्सीमेशन, लोकल डेंसिटी अप्रोक्सीमेशन, और 3 किस्म की अप्रोक्सीमेशन वाले हमारे पास कोरिलेशन फंक्शन है, एक्सचेंज कोरिलेशन फंक्शन। तो ये ना इंडस्ट्री है पोटेंशियल बनाने वाली, जो सिस्टम को देख देख करके अपने जो ये कोरिलेशन फंक्शन है, एक्सचेंज कोरिलेशन, कूलम कोरिलेशन, इसके साथ प्ले करते रहते टिल दे फाइंड हाँ ये अब जो पोटेंशियल डिफाइन हुआ ये मुझे एग्जैक्ट रिजल्ट देने लग गया है, आई एम गेटिंग वेरी क्लोज टू द आंसर। तो ये पिछले समझ लीजिए आप 30-40 सालों में लोगों ने थ्योरेटिकली इसी बात के ऊपर बहुत काम किया, बहुत काम किया। ओके, और ध्यान देने वाली एक और बात, इन VX था, VC था, अल्टीमेटली इनका जो ओरिजिन है वो कहीं ना कहीं कूलम रिपल्शन के साथ जुड़ा हुआ है। और ये हमने जब अपने आप ये सुनने की कोशिश की कि मैं अपने वेव फंक्शन को सिंगल पार्टिकल वेव फंक्शन के टर्म में लिखूंगा, ये उसकी वजह से सब सारी की सारी टर्म यहाँ पे आई, और इनका मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। जब तक मैं इनका ध्यान नहीं करूंगा तब तक मेरी कैलकुलेशन रिजल्ट ठीक नहीं। So let me summarize what I have done right now. I have narrowed down the range of problems to be attacked from solids, liquids and gases to solids only. I talked about some simplifying assumptions in the case of nuclei to be treated as stationary. उसको हमने बोला Born-Oppenheimer approximation, and then we arrived at fundamental equation of electronic structure theory. Then we started looking at approximation to further ease a very what you call strong approximation, psi electron free. No. We also looked at the role of Pauli's fusion principle. We brought back Coulomb interactions via mean field approximation, reducing our single Schrödinger equation of 3 dimensions to n 3-dimensional equation. अब मैं एक ट्रिक की और मैं बार आपको बताना चाहता हूँ। फिजिक्स वाले ने एक बात पे बड़े मारे, वो क्या है, जब भी उनको कोई नई प्रॉब्लम दी जाती है ना तो वो पीछे देखते हैं कि मैं पहले कैसे काम करें। मैं आपको फिर रिमाइंड करवाता हूँ, when you started studying in +2, उससे पहले ना आप हमेशा वन डायमेंशनल मोशंस की बात करते थे। एक गाड़ी जा रही है, आपके बैक ऑफ द माइंड जाता है ये स्ट्रेट लाइन में जाता है, पर ऐसा तो है नहीं, लाइन में तो स्ट्रेट लाइन में तो नहीं चलती सब, है ना। तो देयर इज कॉम्प्लेक्सिटी इनटू इट। जैसे हमने कहा चलो प्रोजेक्टाइल फायर करते हैं, प्रोजेक्टाइल एक पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी पर है, इट इज टू डायमेंशनल मोशन। वेरी गुड, हमें तो आपकी सिर्फ वन डायमेंशनल मोशन की इक्वेशन सॉल्व करनी। हमने क्या किया वहां क्लेवरली, हमने कहा लेट अस look at this problem as not a 2-dimensional problem but 2 1-dimensional problems. आप मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हो तो आपको समझ में आएगा कि कैसे हमने वही ट्रिक यहाँ पे भी इस प्रॉब्लम के लिए यूज करा कि एक Schrödinger equation, single Schrödinger equation of many body having 3 dimensions has been reduced to now n 3-dimensional equations. So I think I will stop here. If there are any questions, वो आप पूछ सकते हो। आपने देखा कि हमने 2 एडिशनल पोटेंशियल इंट्रोड्यूस करे, हमने एक्सचेंज पोटेंशियल
इंट्रोड्यूस करा, उससे हार्ट्ली-फॉक इक्वेशन आई, फिर हमने इलेक्ट्रॉन कोरिलेशन पोटेंशियल भी यूज करा, एंड ये जो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आई थी बन करके, इसको हम पोखर-शार्प इक्वेशन का नाम, क्योंकि आप लिटरेचर में बहुत काफी कुछ इसके बारे में सुनोगे पढ़ोगे। अब डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात सिर्फ कह रहा था, वो बात क्या है, मैं आपके वो बात में रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए, और वो रिपीटिशन इस बात की है कि आपने जब सिमुलेशंस करनी तो आपने ना किताब नहीं छोड़नी, गो बैक टू बुक, कीप ऑन स्टडीइंग दैट कि भाई इस ब्लैक बॉक्स में जिसमें हम कैलकुलेशन करते हैं इसमें है क्या बनाओ, क्योंकि यू नो व्हेन यू स्टार्ट डूइंग कंप्यूटेशन you suddenly start having a sense of complacency कि और ठीक है कैलकुलेशन हो रही है, कंप्यूटर चल रहा है, बट आपको वो चीजें समझ में आ रही है नहीं आ रही है, वो कहाँ पे क्या हम करते हैं, जब भी आप अंडरस्टैंड करने लग जाओगे ना, तो वर्किंग ऑन ए कंप्यूटर merely for computation converts itself into art of computing, because now you know with what parameters you have to play to get the desirable results. Why something is not coming? Why convergence is not taking place? Why the latest constant which I have calculated is completely off the mark? मैंने कौन सी चीज इसमें कर दी? छोटी छोटी चीजें हैं ना, आपको समझ में आती। तो I think अभिजीत जी, अगर कोई क्वेश्चन है तो बताओ, पूछ सकते हैं आप, और Any question? फिर आगे बढ़ेंगे। या बेटे आप ना कंप्यूटर के पास आ जाओ, मेरे को सुनाई नहीं देगा ना, मिक्सर जैसा बन जाता है। सर जैसे आपने कहा कि ये माइक म्यूटेड है, प्लीज अनम्यूट। सर जैसे आपने कहा कि लोअर क्लास में हमारे लिए पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है उसकी डेफिनेशन कुछ और है, और हायर क्लासेस में जब हम जाते हैं तो उसकी डेफिनेशन कुछ और हो जाती है, बट मैंने ये नहीं कहा हम किसी चीज को कैसे रिएक्ट करते हैं एक स्टेज पर, और हायर स्टेज में उसको कैसे रिएक्ट करते हैं देखते हैं, वो डिसिमिलर लगती हैं चीजें। हाँ जी सर, राइट, बट होती सेम है। आप कंप्लीट करो अपना क्वेश्चन। सर वही मुझे वहाँ पे क्लियर नहीं हुआ कि जैसे हम कहते हैं कि हम पार्टिकल्स को एक्सचेंज कर देते हैं, उनकी पोजीशन चेंज कर देते हैं, तो वेव फंक्शन जो है हमारा नेगेटिव आ जाता है, वो हम एंटी सिमेट्री कहते हैं। तो उसका मुझे मतलब मीनिंग जो हम कहते हैं छोटी क्लासेस में कि अगर हम स्पिन सेम नहीं हो सकती है ना, तो वो उससे कैसे रिलेट कर रहा है एंटी सिमेट्री से? अब मैंने आपको ना ये भी बताया था, एक मैट्रिक्स फॉर्म में रिजल्ट लिख के बताया था। हाँ जी, हाँ जी, तो मैंने ना एक स्टेटमेंट दी थी आपको, हाँ जी, कि अगर इस मैट्रिक्स में दो रोज या दो कॉलम्स एक जैसे हो जाए तो वेव फंक्शन जीरो होगा। हाँ जी, यही कहने का मतलब था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग दैट the two electrons have all the four quantum numbers same, if it happens, the probability of such a thing actually means zero. वो हो नहीं सकती, उसकी इंटरप्रिटेशन ये है। अब आप मेरी स्टेटमेंट को अपनी जो +2 की स्टेटमेंट है ना, उसके साथ जब मिला के देखने की कोशिश करोगे तो आप बोलोगे ये जो फॉर्मूला लिखा हमने मैथमेटिक्स वाला इन द फॉर्म ऑफ ए डिटरमिनेंट, वो ज्यादा हमें ना इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, and we are able to see the reason why probability has to become जीरो। ठीक है, okay. ठीक है सर, थैंक यू। बात यही है, हाँ जी। level of saying things is improving as our understanding is improving. ठीक है, थैंक यू सर। Yes. Any more? Please come. Please. सर जो कल की क्लास थी उसमें आपने बताया था फर्स्ट प्रिंसिपल कैलकुलेशन, आप वो एक बार फिर से रिपीट कर सकते हैं, होती है? फर्स्ट प्रिंसिपल कैलकुलेशन का मतलब ये होता है कि हमें उस काम को करने के लिए जो मिनिमम पॉसिबल इंफॉर्मेशन चाहिए हमको वो काम करने के लिए, वही इस्तेमाल करते हैं। हम कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं उसमें डालेंगे
जो हमको किसी और मीन से पहले से पता हो। जैसे मुझे मिनिमम इंफॉर्मेशन से क्या मतलब है, मुझे ये पहचान होनी चाहिए कि जो मैं एटम इस्तेमाल कर रहा हूँ वो कौन से वाला एटम, इसका मतलब है knowing atomic number is more than enough, उससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो हमने उसको कैसे डाला बीच में, जेड ले लिया, सिर्फ जेड है ना। हमने कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं ली जो किसी एक्सपेरिमेंट से मेरे पास आ गई। ये तो प्लस 2 में भी आपको बताइए जेड की वैल्यू क्या होती है, वो बड़ी स्पेशल इंफॉर्मेशन नहीं है, एंड दैट इंफॉर्मेशन नेवर चेंजेस, दैट इज द मिनिमम इंफॉर्मेशन व्हिच वी आर पुटिंग। ओके सर, थैंक है यू। ना, ये है इसका। थैंक यू सर। ओके, वेरी गुड। Any other questions? Sir, can you elaborate exchange correlation potential again? एक्चुअली ये एक्सचेंज का मतलब जो हम कह रहे थे ना कि क्वांटम मैकेनिकली स्पीकिंग, अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन गैस है, तो इलेक्ट्रॉन गैस सिर्फ चार्ज पार्टिकल्स की बनी हुई नहीं, उसके जो पार्टिकल्स हैं उसकी कुछ और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज भी, जैसे स्पिन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। और अगर मैं इस स्पिन के कंटेक्स्ट में देखने की कोशिश करूं, तो मैंने ना जो एंटी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी की बात की थी वेव फंक्शन की, वो इनहेरेंटली इस फिजिकल एस्पेक्ट को दर्शाती है कि इलेक्ट्रॉन की एक और प्रॉपर्टी भी है जो स्पिन है, और अगर हमें एक्सचेंज या स्वैप ऑफ पार्टिकल्स का ध्यान रखना है तो ये स्पिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो कोरिलेशन है वो भी हमें सेपरेटली इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल इंक्लूड करना पड़ता है। तो ये दिस इज प्योरली क्वांटम मैकेनिकल, इसीलिए ना इनको समझने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि ये क्लासिकली हमें नहीं, हम कभी ऐसी बात नहीं करते। हमने कहा ठीक है इलेक्ट्रॉन ले तो लिए, आप एक कूलम रिपल्शन की बात ला रही है अब इसमें, तो कूलम रिपल्शन देखो बहुत नजदीक है तब ऑपरेट कर रही है, बहुत दूर है तो कोई ऑपरेट नहीं कर रही है। तो क्या हम अपनी कैलकुलेशन में, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, उनके आसपास होने की संभावना बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू व्हाट वी सी से इन ए सिंगल एटम, तो हम उसको टेक केयर कैसे करें। तो काफी ना डेलिब्रेशंस के बाद इन चीजों पे धीरे धीरे आपने देखा टाइमलाइन देखो, 30s में कुछ काम कर रहे थे लोग, 20s में कुछ काम कर रहे थे, और ये जो बोहर ने काम किया था ना, दिस वाज इन 1965, ऑलमोस्ट आफ्टर ए गैप ऑफ 30 years that he started talking about this Born-Sham equation। तो पहला स्टेप क्या किया उसने कहा, भाई वही प्रोजेक्टाइल की 2-dimensional motion means 2 1-dimensional motion, तो हमें उसने बोला हमें 3n-dimensional श्रोडिंगर इक्वेशन की बजाय n-dimensional श्रोडिंगर इक्वेशन की जरूरत। लाइफ सिंपल कर ली, उनको अलग अलग से सॉल्व कर लेंगे, एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन 3 की वैल्यू आ जाएंगी, ऐड करेंगे टोटल एनर्जी आ जाएगी। है ना, तो ट्रिक्स आर वेरी इंटरेस्टिंग। फिलॉसफी वही है, हाउ टू मेक वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग्स सिंपल। Okay, sir. Thank you, sir. Good morning, sir. So when we are calculating this Hartree energy, somewhere I read that it's twice of the electronic energy. It is Twice of the total electronic energy of the system. मैंने आपसे कहा था एक नंबर बोला था -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। So sir, for every system, मैंने ये बोला था ना, yes, sir. रेफर किया था ना। So for अब every ये कौन से वाला ये नंबर जो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये किसकी एनर्जी होती है? सिंगल इलेक्ट्रॉन सिटिंग इन हाइड्रोजन एटम, और इसका जब आप डबल करते हो दैट इज नथिंग बट हार्ट्री एनर्जी। so वो हर सिस्टम में हम सेम ही यूज करेंगे। बिल्कुल, हार्ट्री एनर्जी तो एक हमारे पास स्केल की तरह हो गया। आपकी हाइट कितनी है? ये सर आपकी हाइट कितनी है? 5'2".
52 Yes. किलोमीटर Feet, sir. 5.2. मीटर तो नहीं है ना. No, sir. So now everybody knows here in this audience कभी भी हाइट पूछी जाएगी तो फीट में पूछी जाएगी. Yes. ऐसे कभी नहीं होने वाला है कि हम हाइट जो है वो किलोमीटर में बताने की कोशिश करें. So similarly, you know what we have done is once we identified that this is a very interesting unit और इसके इंटरेस्ट किस चीज में लाई करता है, in converting my problem of Schrödinger equation into a dimensionless problem. Yes. इसका सिग्निफिकेंस ये. तो हमने एक नंबर ऐसा आइडेंटिफाई करा जिसने मेरे सिस्टम को क्या कर दिया, डायमेंशनलेस बना. आप कभी भी किसी भी सॉलिड स्टेट फिजिक्स की किताब में जाओ, एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. तो मैं एक रेफरेंस भी बताता हूँ, वहां पे जाके आप देखना. हमने स्पेसिफिक हीट की कैलकुलेशन करते हैं सॉलिड्स में. वहां पे ना हमारे पास इंटीग्रल्स आते हैं. इंटीग्रल्स को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस इंटीग्रल को ना डायमेंशनलेस बनाते हैं और बाकी सारी चीजें उसकी ना उस इंटीग्रल से बाहर निकाल करके जिसमें डायमेंशन बैठी होती हैं रख देते हैं. और वो इंटीग्रल जब भी हम कैलकुलेट करेंगे ना, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट्स. सिर्फ एक नंबर की तरह वहां आकर के बैठेगा और यूनिट्स आपके सेपरेटली पड़े हुए हैं, आपके पास आंसर प्रॉपर यूनिट्स में आता है. Yes. सर क्लासिकल में पढ़ा था हमने कि जो हैमिल्टोनियन होता है डिपेंड्स अपॉन द सिस्टम, जो यूनिट्स होंगे उसके. सो वो उस चीज़ को अफेक्ट करेगा जो जब हम डिवाइड कर रहे हैं थ्रू आउट श्रोडिंगर. नो, कुछ नहीं इफेक्ट करेगा. ऐसा कुछ नहीं है कि उसको अफेक्ट करेगा. यस. आप मुझे बोल रहे थे ना 5.2 फीट, यस. ऐसे बोल रहे थे ना. अगर मुझे आप ना बताते फीट, तभी मुझे पता था ना कि आप फीट में बात करते हो. यस. जब आप मुझे 5.2 बोल रहे थे तो यू वर टेलिंग मी अ डायमेंशनलेस पैरामीटर. यस. But I was knowing that there is a dimension, and that dimension is sitting somewhere, जिसको मैंने सेपरेट रखा हो. वो मैं मान के चलता हूँ कि ग्रुप में मेरी हाइट की साइज कितनी है. यस. तो ये इंटरेस्टिंग वेज है, यू नो, दीज आर वेरी डिफरेंट वेज ऑफ लुकिंग एट थिंग्स. और हमें ये आइडिया फिक्स करने लगते हैं अपने माइंड में जब हम ये चीजें करते हैं. ताकि हम ना, अगर मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ कि हम ना बिगिनिंग में 6 महीने इसी में उलझे रहते हैं कि यार ये कहाँ जा रहे हैं. ये हार्टरी की बात कर देते, कभी कभी एटॉमिक यूनिट्स की बात कर देते, कभी रिवर्स की बात कर देते. हो क्या रहा है? तो इफ यू आर क्लियर अबाउट मोटिवेशन बिहाइंड द चॉइस ऑफ यूनिट्स, यू विल फील वेरी कंफर्टेबल इन डूइंग कैलकुलेशन. जी सर. सर एक और था, व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग द हार्टरी पोटेंशियल, सो हम कहाँ पे जैसे हमने एक सिस्टम एज्यूम किया इलेक्ट्रॉन्स का, तो आर प्राइम इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द जो हमारा वॉल्यूम एलिमेंट है. हमने एक्चुअली जो हार्टरी पोटेंशियल कैलकुलेट करा था वो पॉइसन इक्वेशन से कैलकुलेट करा. ये सर. और जो हमारे पास इसकी इनपुट जा रहा था, दैट वाज द इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी एनआर. आर क्या होगा सर? आर प्राइम तो जैसे जो हमारा वॉल्यूम एलिमेंट हमने आर प्राइम तो हम भूल गए हैं. नाउ वी आर फॉरगॉटन अबाउट आर प्राइम. हमारे पास तो जो एक मैं बक्सा बना रहा हूँ ना स्क्रीन पर, उसमें मेरे पास अब एक मेरे पास क्वांटिटी है जो सिंगल आर पे डिपेंड करती है. कहीं भी जाऊंगा वहां पे उंगली रखूंगा, वहां की वैल्यू मुझे पता लग जाएगी. दैट आई गेट जब मैंने फ्री इलेक्ट्रॉन श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व की, वहां से मुझे मिला था. मैंने 5.1, 5.2, 5.3 सॉल्व करे, उनका स्केल करा, वो मेरे पास क्या आया था, चार्ज डेंसिटी. मैंने ये कहा था ये चार्ज डेंसिटी मेरा पहले स्टेप को कैलकुलेट करने के लिए चार्ज डेंसिटी. तो उन्होंने ही ये सारी कैलकुलेट करा, फिर न्यू चार्ज डेंसिटी निकाली. राइट. और मैं इसको सिर्फ कंसिस्टेंट वे में करता रहता हूँ. बट व्हाट आई एम डूइंग, आई एम एक्चुअली सॉल्विंग द पॉइसन इक्वेशन फॉर दैट टू नो VHR. सो बेसिकली हम एक इलेक्ट्रॉन पे बाकी जो सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका जो इन्फ्लुएंस होगा वो कैलकुलेट कर रहे हैं. हाँ, मतलब हमने जब डेंसिटी की बात कर ली तो हम ये मान के चल रहे हैं कि डेंसिटी इस बात पे डिपेंड करेगी कि बाकी के इलेक्ट्रॉन भी हैं. यस.
अब देखिए आपको मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ। इस क्लास में शायद 50 लोग बैठे हुए, मान लो अब इसमें कुर्सियां अगर खाली होती, yes, am I audible? Yes. Actually, there is some wrong, something wrong with the connection. थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है. Let me just not try to see myself. Whatever. Are you able to hear me? Yes, sir. Can you repeat what we were talking about? Electrons class में. Sir, you are audible, and you said that there are 50 participants and only 40 chairs are there. I think we have today have live discussion on that. So this is at least everyone is stopping and asking questions.